So essentially, this cost control vis-a-vis cost reduction and industry perspective. So I guess I'm essentially talking to students, right? Yes. Right? How many are inter students? How many final students? So intermediate students. All are inter. All are inter students. All are intermediate, right? Anyone from final? Yes. One, two, three. Okay. But essentially. So now, you are definitely studying all your papers. One of you, I mean, this is an open discussion. It is not really a lecture kind of thing. It is discussion only. So can one of you tell me, is there any difference? Now you must have read in your books, your papers, or whatever. Is there any difference between cost control and cost reduction? Between cost control and cost reduction. In case you believe there is a difference, you tell me, and don't worry, I also know you are students, right? So if you are giving me a wrong answer, nothing really happens, right? I am just asking your point of view, that how do you people see it? Are these two synonymous, or are there any differences? You people, I'm sure you have definitely heard about these terms. Yes, cost control and cost reduction. You are costing students, right? You definitely must have heard. I mean, so I'm asking that are these two synonymous, or are there any difference between? There is a difference between them. Okay? In that case, tell me what is the difference? Tell me, you just now said that there is a difference between the two. First, let me admit, what you said is correct. Yes, there is a difference. In fact, conceptually, they are completely different actually. एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उस पर हम लोग को कंट्रोल करना है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर एक रिडक्शन में हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है कि हम लोग को कॉस्ट को रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। I mean, the answer is, what's your name? नीतीश कुमार त्रिपाठी। Answer is impressive. In fact, the first portion of the answer is correct as well. But the second one is not exactly correct, right? But the first portion is actually correct. First, let me just give a direction, then you would explain it. ABC is actually a system or a technique of treating the overhead costs in an organization in a far better manner, in a far superior manner. It is a technique which is applied for treating my overhead costs or the indirect costs. Can I tell you? Right? So now, बेसिक एग्जांपल ये पेन है, कुछ देर पहले सबको मिला ये पेन। तो इस पेन में क्या क्या होता है? एक कैप है, एक कवर है, इसका अंदर रिफिल का अंदर इंक है। तो पार्टिकुलरली सबको तैयार करने में सब चीज को, कैप्टन को, रिफिल को और ये जो कैप है, तब ये स्ट्रक्चर को, इसको तैयार करने में बहुत सारा कॉस्ट लगता है। कुछ डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट होता है। तो जो ट्रेडिशनली होता था, ट्रेडिशनल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, सब कॉस्ट को एक ही बार कलेक्ट कर लिया जाता है और जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे डिवाइड करके उसको एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन एबीसी एनालिसिस में पार्टिकुलर जो एक्टिविटी है, जैसे सेलिंग हो गया, सेलिंग इज एक्टिविटी, और प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब सारा एक्टिविटी हो गया। तो इन सब को उस एक्टिविटी के हिसाब से बांट दिया जाता है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया गया, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जितना भी एक्टिविटी है उसके हिसाब से बांट करके कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता था, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या है कि पता नहीं चल पाता था कि पार्टिकुलर किस प्रोडक्ट पे मतलब कौन सा एक्सपेंसेस है, क्या एक्सपेंसेस है और वो कितना होना चाहिए था। ये ट्रेडिशनल में नहीं पता चल पाता, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड में ये पता करना बहुत आसान है, क्योंकि जो कॉस्टिंग है, जो कॉस्ट है, जिस एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट लगा है, जैसे सेलिंग हो गया, तो सेलिंग पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना सेल हुआ,
या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोडक्शन हुआ, उस हिसाब से उस कॉस्ट को उस पर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके एलोकेट कर देते हैं। इसे पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे ये है, ये आपने कभी सोचा कितने करोड़ इसका कॉस्ट कितना होगा, और इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? I think 4 to 5 rupees. 5 to 6 rupees. अगर मैं कहूँ कि इसमें 4 रुपये कॉस्ट लगेगा, It may be possible. हो सकता है ऐसा। एक्टिविटी कॉस्ट जो है हम लोग एनालाइज, जो एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस है वो हम लोग लगाएंगे तो कह सकते हैं कि 4 रुपये में मैन्युफैक्चर होगा। अगर ट्रेडिशनल लगाएंगे तो पता कर सकते हैं कि 6 रुपये में भी हो सकता है, 4 रुपये में भी हो सकता है, तो उसमें पता करना मुश्किल है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पता करना बहुत आसान है। Good. Anything else you want to add? So he and me and both study with the same teacher, and he gave the same example. Good. Good. Right? All I can say to कौन कौन लोग स्पीकर के रूप में मौजूद थे? तो ये जमशेदपुर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने आयोजित किया है। ये बच्चों के स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल को डेवलप करने के लिए, और इस सॉफ्टवेयर स्किल में कम्युनिकेशन पे है, बेसिक कॉस्टिंग से रिलेटेड है और कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। इसमें आशुतोष कुमार हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर रहे थे। प्रोफेसर सब्यसाची एस.एन. गुप्ता साहब जो एक्सलरी के फैकल्टी हैं, वो बात कर रहे थे कॉस्टिंग से, कॉस्ट रिडक्शन वर्सेस कॉस्ट कंट्रोल। और तीसरा जो है संजय चौधरी साहब हैं, जो कि एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड बात के बारे में जानकारी देंगे। ये खासतौर पर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए हम लोगों ने किया है कि किताब तो वो पढ़ के आते हैं, बुक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन भविष्य में आगे जाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ पे ये केंद्रित है। और हमारा प्रयास है कि उनको एक उज्ज्वल भविष्य के लिए जो उनका एक एफर्ट रहेगा हम लोगों का, कि उनको उज्ज्वल भविष्य में किस चीज़ से उनको एज देगा कैरियर में, उसके ऊपर हम लोग प्रयास करें कि उनको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाए। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए, विस्तार से ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा। बहुत अच्छा सेशन था ये, कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था, और मेरा जो टॉपिक था वो इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंटरव्यू करना। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है, बहुत बच्चों को सीखने को मिला है। इट वॉज रियली गुड सेशन। तो ऐसे प्रोग्राम कब कब होते हैं, कितने कितने दिनों पे होते हैं? साल में एक बार होता है या फिर प्राय होते रहते हैं? मुझे लग रहा है कि साल में 2-3 बार तो होता ही है, और ऐसे सेशंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस बहुत कम है बच्चों में। आज लोगों से इंटरेक्ट करते हुए ये पता चला कि स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आई एम श्योर। अपना नाम और आशुतोष कुमार द्वारा किया जा रहा है, और इसमें हम लोग जनरली जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आगे क्या करियर प्रोस्पेक्ट होगा उसके बारे में उनको बताने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या क्या बातें सर इसमें जनरली स्टूडेंट्स के लिए सर्विस सेक्टर में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और प्रैक्टिस के क्षेत्र में जो है किस तरह से वो लोग आगे अपना करियर को बना सकते हैं, उसके लिए उनको हम लोग बताने के लिए प्लान किए हुए हैं। ये करियर, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि बच्चे जो इसमें पास कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसको अच्छा लाइन मिले, प्रोस्पेक्ट उसका ठीक हो, सब तरफ वो जा सके, सर्विस सेक्टर, प्रोसेस सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर, सब जगह में वो अपना करियर ढूंढ पाए, और अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होकर उसको पढ़ाई करके क्लियर करने की कोशिश करें। ये हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। मैम आप भी कुछ बोलिए। मैं सीएम ममता प्रसाद हूँ। ये प्रोग्राम बेसिकली बच्चों को चैप्टर की तरफ से बहुत अच्छा कोचिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे थ्योरेटिकल एकेडमिक से सिखाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मतलब सॉफ्ट स्किल डेवलप करना या फिर इंटरव्यू कैसे फेस करना, ये जानना ही बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के लिए ये तो प्रोग्राम रखा गया, तो दैट बच्चे सीखे कुछ, और लोग एक दूसरे से मिलकर के नॉलेज शेयर करें, नया कुछ सीखने मिले उनको।
क्या क्या सीखने को मिला आज की इस कार्यशाला में? थोड़ा जोर से बोलिएगा। बहुत सारे स्पीकर्स थे जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही इंटरेक्शनल प्रोग्राम था। आगे की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हो सकता है एंड ऑल, बहुत कुछ अच्छा था। व्हाट्स योर नेम? हमारी जय शाम होगी। हमारे यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोग्राम करियर एज प्रोग्राम, जो कि काफ़ी अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला कम्युनिकेशंस के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या कॉस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से बताया गया हमारे सारे सर के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा था ये। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार त्रिपाठी। मेरा नाम नीतीश कुमार।